Hi everyone, I'm here again with you all with my next topic of discussion today, that is sex linked inheritance. As we all know, inside the human cell, nucleus is present. Inside the nucleus, "23 pairs of chromosomes are there, out of which 22 pairs are autosomes, and the last one, that is 23rd pair, we called a sex chromosome pair. We also called sex chromosome as allosomes. What we are studying here, that is genes present on the sex chromosomes, are known as the sex linked genes. So this is our topic of discussion today, that is sex linked inheritance. That is the genes, if they are present on the sex chromosomes, they are said to be sex linked and they are showing the sex linked inheritance. Whether the genes are present on the X chromosome or maybe on the Y chromosome. If they are present on the X chromosome, they are known as X linked and showing the X linked inheritance. And if they are present on the Y chromosome, they are showing the Y linked inheritance and we call them Y linked genes. What is the difference between X and Y chromosome? This is the pair of chromosome. This represents the X chromosome and this represents the Y chromosome. X chromosome is very larger in size in comparison to the Y chromosome. Large number of genes are present on the X chromosome and very few genes are present on the Y chromosome. Y chromosome mainly represents the character of males. So here we are going to discuss the X-linked inheritance and Y-linked inheritance. So first we will discuss the X-linked inheritance. That is, the genes present on the X chromosomes are known as the X-linked gene and they are showing the X-linked inheritance. What happens in case of X-linked inheritance? A male always receives an X-linked allele from his mother and not from father. As we know, what is the genotype of male? That is XY. So this X always received by son or male from his mother. मदर से हमेशा X क्रोमोसोम मेल को रिसीव होता है और फादर से हमेशा Y क्रोमोसोम रिसीव होता है. तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में एक्स लिंक्ड एलील हमेशा सन को उसकी मदर से मिलेगी, फादर से रिसीव नहीं होगी. तो इसका मतलब एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में कैरेक्टर्स मेल टू मेल कभी भी ट्रांसमिट नहीं होंगे. नो मेल टू मेल ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर टेक्स प्लेस इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. इसके अलावा अगर फीमेल में एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है तो फीमेल की जो जीनोटाइप होती है वो XX है. एक X हमेशा उसको मदर से मिलता है और एक X हमेशा फादर से मिलता है. तो 50% एक्स लिंक्ड करेक्टर अ फीमेल और डॉटर ऑलवेज रिसीव फ्रॉम मदर एंड अनदर 50% ही ऑलवेज रिसीव फ्रॉम हिज फादर. इसको अभी हम डिटेल में समझते हैं कि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एक्चुअल में क्या होता है. एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में यहाँ पर हम मदर को लेते हैं. मदर में सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं XX. ये हमने यहाँ पर लिया फादर को.
फादर के केस में XY जीन्स प्रेजेंट होती हैं, सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं XY। यहाँ पर हमने प्रोड्यूस करना है सन। सन को अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो सन का जीनोटाइप हमें पता है XY होता है। तो सन के केस में X he always receive from his mother and this Y he always receive from his father। फादर से उसको Y मिलेगा और मदर से उसको X मिलता है। मान लीजिए अगर मदर में कोई X लिंक्ड करेक्टर प्रेजेंट है, मान लीजिए कोई जीन प्रेजेंट है, कलर ब्लाइंडनेस की जीन प्रेजेंट है, और फादर में भी कलर ब्लाइंडनेस की जीन प्रेजेंट है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस की जीन मदर से सन को ट्रांसमिट होगी। फादर से हमेशा वाई क्रोमोसोम सन को ट्रांसमिट होता है, एक्स क्रोमोसोम कभी भी सन को ट्रांसमिट नहीं होगा। नो टू सन। सन में कभी भी ये एक्स क्रोमोसोम फादर से नहीं जाता है, हमेशा मदर से एक्स क्रोमोसोम जाता है। इसी तरह से अगर कलर ब्लाइंडनेस की जगह यहाँ पर हीमोफीलिया की जीन प्रेजेंट है, तो हीमोफीलिया की जीन भी हमेशा एक्स क्रोमोसोम के थ्रू मदर से ही सन को ट्रांसमिट होगी। फादर अगेन वाई क्रोमोसोम ही सन को ट्रांसमिट करेगा। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हेयर, दैट इज द जीन्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया is X-linked and it is always passes to son from his mother, never goes from father to son, because father always transferring Y chromosome to his son, and X-linked character, that is the color blindness and hemophilia along with X chromosome, always goes from mother to son। तो hemophilia and color blindness क्या है? These are the X-linked disorder which are always passing from mother to son, never goes from father to son, father always transferring Y chromosome to his son। or what we are observing in this case, that is the X-linked character always goes from mother to son। और अगर हम आगे जनरेशन प्रोड्यूस करें तो सन इस X करेक्टर को हमेशा अपनी डॉटर को ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि Y तो वो अपने सन को देगा, तो ये एक्स लिंक्ड करेक्टर हमेशा सन टू डॉटर जाएगा। इसी तरह से अगर हम डॉटर से आगे ट्रांसमिट करें तो डॉटर से ये एक्स करेक्टर जो है सन को ट्रांसमिट होगा, क्योंकि सन जो वाई करेक्टर है अपने फादर से रिसीव करेगा। तो इसका मतलब क्या है? मदर टू सन, सन टू हिज डॉटर एंड डॉटर टू हिज सन। There is no direct transmission of X-linked character takes place. It is a crisscross type of inheritance in which the character are passing in a crisscross way, not in a direct way. What do you mean by crisscross way? That is the X-linked character passing from mother to son, son to daughter, and daughter to son, son to daughter. So it is known as the crisscross inheritance. So X-linked character always follow the crisscross inheritance, that is mother to son, son to daughter, daughter to her son, and from son to his daughter. This is known as the crisscross inheritance. Now we observe the second case. Second case, this is mother and this is father. The XX chromosome in case of mother, and in case of father that is XY chromosomes are there.
अब हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं डॉटर को. डॉटर का जीनोटाइप होता है XX. तो 1X इज कमिंग फ्रॉम mother to his daughter and another X he receives from his father. So genotype of daughter is XX. 1X उसको रिसीव हो रहा है फादर से और 1X रिसीव हो रहा है उसको मदर से. सो 50% करेक्टर जो एक्स लिंक्ड करेक्टर होंगे वो डॉटर को मदर से ट्रांसमिट हो रहे हैं और 50% फादर से ट्रांसमिट हो रहे हैं. तो अगर मदर में कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया की जीन्स प्रेजेंट है तो वो अपनी डॉटर को पास ऑन करेगी कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की जीन्स को एक्स क्रोमोसोम के थ्रू. इसी तरह से अगर फादर में एक्स लिंक जीन कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया प्रेजेंट है तो ये एक्स क्रोमोसोम के थ्रू डॉटर को ट्रांसमिट करेगी कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया को. एंड फीमेल बिकम सफरर. फीमेल सफरर हो जाती है इन दिस केस. तो इन दिस केस व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, अगर फीमेल में एक एक्स लिंक्ड करेक्टर कलर ब्लाइंडनेस है हीमोफीलिया का मदर से ट्रांसमिट हो रहा है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम फादर से ट्रांसमिट हो रहा है जिस पर अगेन कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया की जीन्स प्रेजेंट है, तो फीमेल जो है सफरर हो जाती है, उसको डिजीज डेवलप हो जाती है. सो अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पर सेक्स लिंक जीन कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया की प्रेजेंट है तो फीमेल सफरर हो जाती है. तो इट मीन्स इट इज़ ए रिसेसिव डिसऑर्डर. ये रिसेसिव डिसऑर्डर है. अगर सिर्फ मदर से एक एक्स क्रोमोसोम डॉटर रिसीव कर रहा है जिस पर जीन कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया की प्रेजेंट है और मेल इज नॉर्मल, इस पर कोई हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस की जीन नहीं प्रेजेंट है और ये एक्स क्रोमोसोम डॉटर को ट्रांसमिट कर रहा है, तो यहाँ पर एक ही एक्स क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट होने की वजह से जो डॉटर है वो कैसी होती है, वो कैरियर होती है. सफरर होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम पर जीन्स का होना जरूरी है. इसका मतलब मेल भी सफरर होना चाहिए और मदर पर भी एक एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया की जीन्स होगी, तभी डॉटर जाकर सफरर होगी. तो इसका मतलब जो हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस है वो रिसेसिव डिसऑर्डर है. दोनों एक्स क्रोमोसोम पर डॉटर के केस में ये जीन्स होनी चाहिए और डॉटर 50% एक्स लिंक करेक्टर मदर से इनहेरिट कर रहे हैं और 50% करेक्टर फादर से इनहेरिट कर रहे हैं. What we are observing here कि in case of male the male becomes sufferer if there is genes of hemophilia and color blindness is present on the X chromosome. In case of male only single X chromosome is present. अगर उस X क्रोमोसोम पर सेक्स लिंक्ड करेक्टर दैट इज हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस की जीन्स प्रेजेंट है तो मेल में डिजीज अपीयर हो जाती है. जबकि फीमेल के केस में दो XX क्रोमोसोम है, दोनों पर अगर जीन्स आती है तभी वो सफरर होती है. अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया की जीन्स प्रेजेंट है तो वो सफरर नहीं होगी. तो इट मीन्स हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो है वो कैसे डिसऑर्डर हुए, वो रिसेसिव disorder हुए in case of human being. So what we observe in case of X-linked inheritance, that is the alleles of hemophilia and color blindness, they are present on the X chromosome, so they are showing the X-linked gene. Male always receives an X-linked allele from his mother only and not from father. There is no transmission from male to male in case of X-linked inheritance, and female always receives 50% X-linked character from his mother and 50% X-linked character from his father. So hemophilia and color blindness क्या है? They are the X-linked inheritance and इसके अलावा they are the recessive disorders in case of human being. Now we understand the concept of Y-linked inheritance. In case of Y-linked inheritance, alleles are present on the Y chromosome and showing the Y-linked inheritance. The Y chromosome starting में हमने देखा is very shorter in size than the X chromosome, and on the Y chromosome only few genes are present. Mainly it represents the character of males only.
on the X chromosome, large number of genes are there. The inheritance of the Y-linked genes, also known as Holendrick genes. Holendrick. Endrick means endogen. It representing the male characters. Always passes from father to son. फादर से सन में ही ट्रांसमिट होंगे, क्योंकि फादर वाई क्रोमोसोम सन को देता है, कभी डॉटर को नहीं देता. तो वाई लिंक्ड करेक्टर है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है, तो हमेशा मेल टू मेल ट्रांसमिट होगी. किस तरह से मेल टू मेल ट्रांसमिट होगी, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इस कंसेप्ट को. इन केस ऑफ हॉलेंड्रिक इनहेरिटेंस और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, व्हाट हैपन्स, फादर का जीनोटाइप होता है एक्स वाई और एक्स एक्स होता है मदर का. अगर हमें ये वाई इनहेरिट करना है तो वाई लिंक्ड जीन्स हमेशा फादर से सन को ट्रांसमिट होगी. वाई करेक्टर कभी भी डॉटर को ट्रांसमिट नहीं होता, कभी भी ट्रांसमिट नहीं होगा, हमेशा सन में ही जाएगा. और सन से फिर सन इसको अपने सन में ट्रांसमिट करेगा और सन से फिर सन में जाएगा. तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है, ऑलवेज गोज फ्रॉम मेल टू मेल, ऑलवेज गोज फ्रॉम मेल टू मेल, नेवर गोज टू डॉटर. डॉटर में कभी भी वाई लिंक्ड करेक्टर की इनहेरिटेंस नहीं होगी. इट इज ए स्ट्रेट वे इनहेरिटेंस, स्ट्रेट वे इनहेरिटेंस. स्ट्रेट वे क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ऑलवेज गोज फ्रॉम मेल टू मेल, मेल टू मेल. सो हम इसको स्ट्रेट वे इनहेरिटेंस कहते हैं. तो वाई लिंक्ड करेक्टर हमेशा वाई से दैट इज मेल से मेल में ही जाते हैं, कभी भी फीमेल को ट्रांसमिट नहीं होंगे. दो तरह के डिसऑर्डर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में. फर्स्ट वन इज द हाइपरट्राइकोसिस. हाइपरट्राइकोसिस के केस में क्या होता है, हाइपरट्राइकोसिस के केस में ईयर पिन्ना, दिस इज ईयर पिन्ना, द हेयर्स अपीयर ऑन द pinna, this is the disorder. The genes are present on the Y chromosome, so it is Y-linked in disorder, never appear in case of female, always appear in case of male. Second disorder is hyperichthyosis. The genes of hyperichthyosis is again present on the Y chromosome, so always goes from male to male, never appear in case of female. The skin becomes dry and scaly. This is all about in this video. Thank you so much.